Good morning, student. I am Rajendra Singh Mori, your maths teacher from the Gyanmanjari Vidyapith Mahuva. Today in class 7th, today is our 8 day 8 lecture, and this is particularly we have to discuss earlier whatever we mentioned into the integer parts. Just we have to take the practice question number 5 and NCERT exercise 1.4 that is given into the page number 26. So for this point of view we have to move forward. So practice question number 5 and NCERT exercise 1.4, both things we have to cover first, and then after we go for the next concepts. Okay, so everyone please, whatever the content we discuss you can also write in your notebook में आप लिखते जाना, or you can also pause my video and you can also write whatever the I mentioned in this today's lecture, isn't it? So let us move on that points. So first of all, in this exercise 5.4, practice question 5.4, and inside the 5.4 your SB supplementary book page number 8, it's suggesting the 5.4 ka first we have to using here that a restaurant needs 5 orange. You can also open the supplementary book page number 8. On that practice question 5.4 you have to reveal that SB 8 is there. So a restaurant needs 5 orange to make a glass of orange juice. If they have 250 oranges, how many glasses of the orange juice can they make? मतलब यहाँ पे आपको कितने रेस्टोरेंट्स को कितनी ज़रूरत है? 5 ऑरेंज टू मेक ए ग्लास ऑफ ऑरेंज. एक ग्लास ऑरेंज जूस बनाने के लिए उसको 5 ऑरेंज चाहिए. इफ दे हैव 250 ऑरेंजेस, अब 250 है तो कितने ग्लासेस इसमें ऑरेंज जूस बन सकता है, वो हमारा क्वेश्चन. अब गिवन क्या है? 250 oranges and 5 oranges make 1 glass of juice. So given part is 250 oranges and asked is number of glasses that can be made out of 250. 250 में से कितने glasses orange बन सकता है. अब यहाँ पे तो सीधा सा है, 250 को 5 से डिवाइड करो, मतलब डिवीजन ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड हियर. रीजन 250 oranges में से how many glasses we have to make, that's why we have to divide, and statements is 250 divided by 5, so we got 50. The restaurants can make 50 glasses of orange juice. ये तो बड़ा easy चीज था क्योंकि it is a part of division of integers. So let us move on to the 5.5. ये दोनों क्वेश्चन आप अपने माइंड में लिख देना और यू कैन ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक. So the temperature 5.5 is considered here. The temperature change recorded for a certain place is minus 7 degrees Celsius every week. The decrease in temperature is minus 56 degrees Celsius in total. So for how many weeks was this temperature recorded? मतलब हमें यहाँ पे जो भी चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, एक सर्टेन प्लेस के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, उसमें ऐसा दिया गया है कि -7 डिग्री सेल्सियस हर वीक उसमें चेंज होता रहता है. द डिक्रीज इन टेम्परेचर इज -56 डिग्री सेल्सियस इन टोटल. टोटल कितना कम हो रहा है? -56. सो फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉज इज दैट टेम्परेचर रिकॉर्डेड हियर? दैट मतलब हर वीक में -7 डिक्रीज हो रहा है और टोटल डिक्रीज होके कितना हो रहा है? -56. तो हमें ये दो चीज बताई गई है, -7 डिग्री सेल्सियस एवरी वीक एंड टोटल -56 डिग्री सेल्सियस. सो गिवन आस्क हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन थ्रू? नंबर ऑफ वीक्स हमें बताना है कि कितने वीक में ये -56 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. सो ऑपरेशन ऑब्वियसली डिवीजन ही होगा. सो बिकॉज ऑफ -56 डिग्री सेल्सियस को -7 से हम डिवाइड करेंगे. So minus minus है इसलिए we have to got the 8. 7 8s are 56. So 8 weeks we required for the temperature change was recorded in 8 week. कितने week लगेंगे? 8 week. So that is also be very easy things. So let us move on to the 5.6.
Here given the another question is that team A faces a loss of 5876 points in round 1. How much is the loss of points for each of the 26 players of team A if the loss is shared equally by each player? मतलब हमें यहाँ पे ये बताना है कि कितना लॉस है, पॉइंट्स का लॉस हो रहा है राउंड 1 के टीम ए को. ए लॉस ऑफ 5876 पॉइंट इज शेयर्ड इक्वली बाय 26 प्लेयर. कितने टीम में प्लेयर है? टीम ए में 26 प्लेयर. सो इस प्लेयर शेयर इन दिस लॉस. सो ऑपरेशन इज ऑब्वियसली डिवीजन ही होगा. 5876 डिवाइड बाय 26. अब ये लॉस है 5876. सो वी हैव टू यूज दिस नेगेटिव. उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे क्योंकि इट्स कंसिडर एज ए लॉस. So minus 5876 divided by 26. So we got minus 226 is there. अब each player shares in the total losses of 226 points. So we can also use that. This is a division. So this is also be very easy for the question 5.6 in supplementary book is 8. Okay. Now 5.7 को हम consider कर रहे हैं अभी जो SB 8 में given है. So 5.7 the given table shows the freezing point in Fahrenheit. Here given that in the Fahrenheit. One table 3 columns यहाँ पे है. एक गैस है, freezing point है, that is given in Fahrenheit, and freezing point also be given into the Celsius. So different gases, convert each of this into Celsius and complete the table. आपको complete करने के लिए एक formula given है. C is equal to in the bracket 5 in small bracket f minus 32 in the bracket whole square bracket is over divide by 9. ये फॉर्मूला का यूज करके आपको करना है. अब हाइड्रोजन को कंसीडर करो तो फ्रीजिंग पॉइंट है -435. उसको आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में. तो यू कैन पुट डायरेक्टली -435 in the place of f and it will converted into the Celsius and the answer is -2594 by 9. ये आंसर आपको मिलाना है. समझ में आ गया? यहाँ पे दो चीज आपको बताई गई है, हाइड्रोजन और क्रिप्टन की. ये दोनों चीज में फ्रीजिंग पॉइंट्स भी गिवन है एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है. तो दिस इज ऑल्सो बी वेरी इजी थिंग्स फॉर यू. सो यू कैन ऑल्सो डू दिस वर्क इन टूडेज होमवर्क ऑल्सो. ओके. So 5.7. But I required here the calculations. So you cannot directly put like -435 as a part of f, but you have to put in this particular formula. फॉर्मूला जो आपको given है ना, उसी फॉर्मूला में आपको रख के you have to find out the freezing point, isn't it? So let us move on to the 1.4 exercise in the NCERT that is also be given like in the page number 26. I already provided you to the PDF, so you can also directly see from the 1.4 also. यदि आपको PDF में नहीं पता है या नहीं आपके पास अभी है, so you can also directly see from this video. आप वीडियो में से भी देख के कर सकते हो. So temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it is decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour कितना डिक्रीज हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस until the midnight. At what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? अब 8 डिग्री सेल्सियस जीरो से बिलो कब होगा और वो कौन से टाइम पे होगा? What would be the temperature at midnight? So here given that 12 noon is 10 degree Celsius. दोपहर के 2 बजे 12 बजे कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस. And it is decreases at 2 degree Celsius per hour until midnight. Midnight मतलब रात के 12 बजे तक. कितना कम हो रहा है? 2 डिग्री. तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है कि कब -8 डिग्री सेल्सियस होगा, कौन से टाइम पे. और दूसरी चीज, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. मिडनाइट पे टोटल टेम्परेचर कितना होगा. ऑपरेशन यहाँ पे फर्स्ट ए और बी दो टाइप के क्वेश्चन है. तो ए में हमें सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन करना है एंड बी में हमें मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन करना है.
Okay, so first we have to find out the A and B both. So let us move. Mathematical statement and solution for the A. 10 minus 8 degree, so we have to got 80 degree Celsius. 80 degree divided by 2, so that is we have to require the 9 hours. The temperature will be 8 degree Celsius below 0 at 9 pm. कब होगा? 9, because of we have to using 10 डिग्री से आप स्टार्ट करेंगे और हर बार उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट किया आपने? -8, यानी टोटल आपका हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस में हर आवर्स में 2 कम हो रहा है, तो 80 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 9। सो 9 ओ क्लॉक एट द नाइट it will be a 8 degree Celsius. Similar way for the second one, -2 in 12 hours, so -24 डिग्री सेल्सियस होगा. सो 10 डिवाइड बाय -24 डिग्री, मतलब 10 प्लस -24 को कंसिडर करो तो -4 डिग्री सेल्सियस होगा. वो टेम्परेचर एट द मिडनाइट, मतलब 2 क्वेश्चन हमें पूछा गया था कौन से टाइम पे 8 डिग्री से 0 से मतलब -8 डिग्री मिलेगा, वो 9 ओ क्लॉक मिलेगा. और दूसरा क्वेश्चन ऐसा था कि टेम्परेचर मिडनाइट पे कितना होगा, तो वो होगा -14 डिग्री सेल्सियस, इजंट इट? तो ये जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का. सो यू कैन ऑल्सो मेंशन ईच एंड एवरीथिंग, जो आज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सभी को, आज पूरे लेक्चर में जो भी मैंने बोला है वो सभी आपको होमवर्क में करना है, मतलब यहाँ ही है आपका सॉल्यूशन. सो यू कैन ऑल्सो write down each and everything from the NCERT exercise. So 1.4 page number 26, that is also be given here. So you can also write down this question and then you have to solve out in your homework. Okay, तो सिमिलर है, आगे जो मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही सिमिलर है. और आपको सॉल्यूशन यदि नहीं पता चल रहा है देन इट इज ऑल्सो बी अवेलेबल इन दिस वीडियो, सो यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली पुट दिस थिंग्स. सो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो रहा है. ये पूरा क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ 1.4 का. ये जैसे ही आपको मिल रहा है राधिका मार्क्स 8 क्वेश्चंस इनकरेक्टली तक आपको सॉल्व करना है. हियर ऑल्सो बी गिवन द रिमेन पोर्शंस ऑफ दिस, सो ऑल पॉइंट्स यू हैव टू कवर्ड फॉर द एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर 26 एंड फाइनली यू हैव टू गॉट अप टू द 3. तो फिर से मैं बता दूं, ये पूरा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है जो यहाँ पे लिखा है वैसे एग्जैक्टली. ओके, तो आज का होमवर्क मैं पहले से बता दूं आपको, क्या मैंने अभी बोला वही चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. फिर से मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आज के होमवर्क में जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5.4 SB 8 में 5.4 वो होमवर्क में लिखना है 5.4. ओके, सेकेंड वन 5.5 का SB 8 में वो भी आज आपको होमवर्क में लिखना है. इज इट क्लियर? फिर 5.6 वो भी आज आपको होमवर्क में लिखना है. यू कैन ऑल्सो पोज दिस वीडियो एंड यू कैन राइट डायरेक्टली. सो 5.4, 5.5, 5.6 एंड 5.7 समझ में आ गया? अप टू द 5.7 फ्रॉम द practice question 5.7. okay, then you have to using 5.4, 5.5, 5.6 and 5.7. 4 होमवर्क हो गया. अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 26 में ये क्वेश्चन 5 अभी भी चल रहा है, दूसरे पेज में भी 5, यहाँ से 6. NCERT exercise 1.4 का 5 then 6. okay, then this is also a part of 6, this is also a part of 6 and this is also a part of 6. so 4, 5 and 6 from the exercise 1.4. तो ये सब चीज आज जो भी मैंने एक्सप्लेन की दैट इज ऑल्सो बी मेंशन इन योर होमवर्क. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट्स.
So let us move on to the properties of the integer operation at the last of this lecture. Just we have to take one by one. What is the closure property of the addition of the whole number? अब ये पहले हम ये सभी प्रॉपर्टी ऑलरेडी सीख चुके हैं. जस्ट वी टेक इट वन बाय वन. किसी भी सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑल्सो ए होल नंबर. ये पूरी जो लाइन है वो आपको याद रख लेनी है. क्या कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द होल नंबर क्या होता है, मतलब द सम ऑफ टू होल नंबर. कोई भी दो होल नंबर्स का सम जब भी हम करें तो वो उसका आंसर होल नंबर ही आएगा. मतलब 1+2 इसका आंसर 3 आया, वो होल नंबर ही है. 21+24 तो इसका जो भी आंसर आया 45 वो भी एक होल नंबर है. 0+4 दोनों होल नंबर्स का यदि टोटल करेंगे तो 4 ही आएगा. मतलब द सम्स आर ऑल्सो होल नंबर. तो पहली चीज आपको याद रह गई, द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑल्सो ए होल नंबर. ओके. सेकेंड वन, व्हाट इज द कम्युलेटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन ऑफ होल नंबर. मतलब हम यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले हमने ली, क्लोजर प्रॉपर्टी. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द होल नंबर क्या है. द सम डज नॉट चेंज even when the order of the numbers that are added is reverse. मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि 1+2 उसका ऑर्डर हम चेंज कर दे 2+1 तो भी इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, वो आंसर वही आएगा. 1+2 करो या 2+1 करो, दैट इज द आंसर इज सिमिलर. 21+24 करो या 24+21 करो, दैट द आंसर इज 45. मतलब द सम डज नॉट चेंज इवन व्हेन द ऑर्डर ऑफ नंबर्स दैट आर एडेड इज रिवर्स. यदि आप उसको रिवर्स की तरह ऐड करो तो भी इसका आंसर सिमिलर ही रहेगा. दिस इज फॉर द क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी. एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज द थर्ड वन. द आंसर डज नॉट चेंज विथ एनी चेंज इन द प्लेसमेंट ऑफ द ब्रैकेट. मतलब आपका आंसर कभी चेंज नहीं होगा. 1+2+3 ऐसा लिखा है, वही चीज को आप कंसिडर करो 1 और 2 और 3 को ब्रैकेट में ले लो तो 1+2+3 का आंसर भी 6 ही रहेगा. मतलब द आंसर डज नॉट चेंज विथ एनी चेंज इन द प्लेसमेंट ऑफ द ब्रैकेट. ब्रैकेट का चेंज आप कर लो, उसके प्लेसमेंट को बदल दो तो भी आपका आंसर सिमिलर ही रहेगा. तो ये तीनों चीज आपको बताई गई. नाउ फॉर विच इंटीजर ऑपरेशन डू द थ्री प्रॉपर्टीज होल्ड ट्रू. फॉर दिस एक्टिविटी यू विल वर्क इन ग्रुप ऑफ 4. अब ये चीज है सिर्फ आपको याद रख लेनी है यहाँ से कि फॉर दिस एक्टिविटी यू वर्क ऑन द ग्रुप ऑफ 4. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर satisfy the closure property, commutative property and associative property. Okay, so this is also be having the property point of view. तो यहाँ तक हमने तीन चीज बताई, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी for the whole number. So you have to recall these things for the future reference. Okay, so I hope so that you understood well these concepts, and whatever the homework is given in earlier part of this video, you can also find out this homework and carefully you have to submit it up to the given time period. Okay, thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you very much.